हेलो, आई वेलकम यू टू मेडिकोस। सो आज का अपना टॉपिक है पोसोलॉजी, होम्योपैथिक पोसोलॉजी। इन शॉर्ट, होम्योपैथिक पोसोलॉजी। इन होम्योपैथिक पोसोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद इन होम्योपैथी वी हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू गिव द मेडिसिन इन प्रॉपर क्वांटिटी और विल से इन प्रॉपर पोटेंसी. Okay, selection of remedy is first, but selection of potency is like इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इंपॉर्टेंट है. सो पोसोलॉजी आपको याद ही रखनी है, नॉट ओनली फॉर द कोर्स ऑफ BHMS MD बट आफ्टर द कोर्स ऑफ BHMS and MD फॉर द प्रिस्क्रिप्शन पर्पज यू हैव टू नो द पोसोलॉजी concept. So posology is Greek word derived from two words, posos that means how much and logos meaning study. So doctrine of doses of medicine. Dose is nothing but quantity of dose or drug of therapeutic agent to be taken or applied within the state period. So आपको यही लिखना है, मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको यही एग्जाम में लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर etiology. So posos and logos. Then doctrine of dosage is called as posology. Then what is dose? It is a quantity of drug or therapeutic agent that to be given or applied within the stated period. So dose, what is, see, अगर कहीं डोज ये वर्ड आया तो वी हैव टू रिमेंबर कि डोज के साथ पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आएगा. पोटेंसी इज आइदर इट इज गिवन इन सेंटिसिमल स्केल, इट इज गिवन इन डेसिमल स्केल और इट इज गिवन इन 50 मिलीसिमल स्केल. क्वांटिटी how many globules per day or we'll say how much we have to take, that is quantity. In form it is in solid, either solid, liquid or semi solid form. Number of administration में दिन में कितनी बार आपको ये मेडिसिन लेना है ये. So we have to remember this potency, quantity, form and number of administration. जहाँ कहीं भी ये डोज से वर्ड आया आपको यही याद रखना है. So it is related to aphorism number 275. In homeopathy, organ of medicine, there are many more aphorisms and aphorism number 275 concern with this concept, posology. So what it states? So it states in spite of correctly selected medicine on the basis of totality and symptoms, it will act curatively unless it is given in proper potency. In short, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि इन होम्योपैथी वी हैव टू रिमेंबर कि आपको करेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट करनी तो करनी है, पर आपको उसके साथ करेक्ट पोटेंसी भी सिलेक्ट करनी है जिसकी वजह से वो करेक्ट सिमिलिमम होके एक्ट करेगी. ठीक है. सो पोटेंसी में 3 पोटेंसी होती है अपने पास, लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी. लो मतलब बिलो 20, मीडियम पोटेंसी इज बिटवीन 30 to 1 m and high potency is above 1 m. 1 m is nothing but 50 millisiemen. Okay, so below 30 low potency, between 30 and 50 millisiemen medium potency and above 50 millisiemen that is high potency. See, low potency को organotropic potency भी बोलते हैं. ठीक है. मीडियम पोटेंसी का इट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ बॉडी एंड हाई पोटेंसी इट इज साइचिक पोटेंसी और विल से न्यूरल फंक्शन को ठीक करती है. तो आपने तो अभी करेक्ट मेडिसिन होम्योपैथी सिलेक्ट कर दिया है, पर आपको पोटेंसी देने दो, आप कैसे समझेंगे किसको कौन सी पोटेंसी देनी है. तो फॉर गिविंग द मेडिसिन इन प्रॉपर पोटेंसी वी हैव टू रिमेंबर सर्टन पॉइंट्स एंड दीज आर susceptibility. So susceptibility क्या है कि it is nothing but immunity of patient. So see, susceptibility is nothing but immunity. So if the patient have high immunity, we have to give the higher potency. If the patient has low immunity, we have to give the low potency. Okay. Then depend upon age, children plus young age, we have to give the high potency. Why? Because there is no wear and tear of organ in younger age or children. So we have to give high potency in young age or children. Old age we have to give low potency because there is wear and tear of organ, and due to this we have to give the low potency. According to sex, see, working female who work like labor work, so we have to give here high potency. Housewife, ठीक है. Because why? Working female have stress and anxiety, so we have to give higher potency here. Non-working female like housewife, we have to give low potency because there is less mental work. ठीक है. After that, male calm, we have to give low potency. If the male is irritable, we have to give higher potency on the basis of sex. Then on the basis of habit and environment. On the basis of habit and environment. So see, I have written in 2 ways like this. Okay.
हाई पोटेंसी एंड लो पोटेंसी। सो हाई पोटेंसी हमें कब देनी है, कौन से एनवायरमेंट और हैबिटेट में, कि हाई पोटेंसी हमें देनी है व्हेन पर्सन वर्क मेंटली अगर ज्यादा वर्क होगा पर्सन को तो देनी है। सेडेंटरी ऑक्यूपेशन मतलब बैठ के काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, तो वी हैव टू गिव हाई पोटेंसी। देन लॉन्ग स्लीप, द पर्सन हु हैज लॉन्ग स्लीप, वी हैव टू गिव हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी कब देनी है, वह जब मेंटल वर्क कम होगा, मतलब पर्सन है जो माइनिंग करता है और पर्सन है जो मतलब बहुत लेबर वर्क करता है, तो हमें उसमें लो पोटेंसी देनी है, बिकॉज यस वियर एंड टीयर ऑफ ऑर्गन। फिजिकल वर्क होगा, इडियट्स होंगे, डीफ डंप होंगे, वी हैव टू रिमेंबर कि लेस स्लीप, ओके, और हुज फूड इज कोर्स, सो वी हैव टू गिव हियर लो पोटेंसी। सो दिस पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू सी। आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं सिर्फ। सेक्स के फीमेल में कैसे देंगे, मेल अगर वर्किंग होगी तो कैसे देगी, फीमेल ऐसे, ओके, समझा आपको। हैबिटेट में भी हाई कब देनी है, लो कब देनी है, हाई देनी है। सी वी हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट इफ देयर इज अ मेंटल वर्क इन मेल फीमेल वट एवर इट मे बी, मेंटल वर्क, sedentary occupation and long sleep, we have to give high potency only. See on effeminate, okay, on effeminate, ठीक है। after that medical aggravation, see तो अभी ये देखा हमने, तो हमें याद रखना है कि अगर मेडिसिनल एग्रीवेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आया तो हमें हाई डोज देना है उसी मेडिसिन का जो लेके उसे एग्रीवेशन हुए। अगर पेशेंट आया आर्सेनिक लेके एग्रीवेशन के साथ, तो हमें देना है आर्सेनिक का ही डोज टू रिड्यूस द एग्रीवेशन इन हाई पोटेंसी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिसीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिसीज, हियर नॉट डोज, इट इज डिसीज के बेस पे हम कैसी मेडिसिन देते, कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन देंगे। सो सी अगर डिसीज एक्यूट होगा, इन एक्यूट डिसीज लाइक कोल्ड, कोराइजा, कफ, so in that we have to give the higher potency with repetition, okay. So acute disease, high potency with repetition. Acute manifestation of chronic disease, okay, acute manifestation of chronic disease, see अगर acute manifestation of chronic आप सीखेंगे आगे जाके ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, मटेरिया मेडिका में, आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि acute manifestation of chronic disease लेके पेशेंट आया तो हमें क्या देना है। अगर वो आया with gross change in, यस ग्रॉस चेंज इन ऑर्गन के साथ वो आया कि ऑर्गन अफेक्टेड है, कुछ हुआ है, तो वी हैव टू यूज द लो पोटेंसी। अगर कोई ऑर्गन अफेक्टेड नहीं है, ओनली एक्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक डिसीज है, तो हमें हाई पोटेंसी देयर यूज करनी है। अगर क्रोनिक डिसीज के आया, लॉन्ग टर्म डिसीज के साथ पेशेंट आया और क्रॉस चेंज इन ऑर्गन हो गया, तो हमें लो पोटेंसी एज एक्यूट, ओके, देनी है। एंड नो ऑर्गन चेंज के साथ आया लाइक स्ट्रेस और एंजाइटी, मेंटल साइकिक डिसीजेस, न्यूरल डिसीजेस, तो हमें हाई पोटेंसी यूज करनी है। विथ मेंटल डिसीज के साथ पेशेंट आया तो हमें ऑलवेज लो पोटेंसी यूज करनी है, ठीक है। सी आप बोलेंगे इधर हाई इधर लो, बट यस इट इज लाइक दैट। क्रोनिक डिसीज में अगर नो ऑर्गन चेंज के साथ एनी साइकिक कंडीशन के साथ पेशेंट आया तो हमें हाई पोटेंसी देनी है। पर इन यूजुअल कंडीशंस लाइक यूजुअल है, नो क्रोनिक डिसीज, ओनली मेंटल साइकिक डिसऑर्डर है, तो हमें लो पोटेंसी देनी है। इनक्यूरेबल डिसीजेस, सी 50 millisieverts potency is invented by Dr. Samuel Hahnemann because Dr. Samuel Hahnemann was not satisfied with the whatever there is decimal or centesimal scale, so he invented 50 millisieverts scale and it is very useful in incurable diseases. So see centesimal और decimal scale के हम इतने रिपीटेशन नहीं कर सकते जितने हम 50 मिलीसीमेल के कर सकते। तो डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने सोचा कि अगर 50 मिलीसीमेल इन्वाइट करेंगे तो इट शुड वर्क इन इनक्यूरेबल डिसीज। सो ये वर्क करते 50 मिलीसीमेल स्केल जो है वो वर्क करते इनक्यूरेबल डिसीजेस में, एंड वी कैन गिव द 50 मिलीसीमेल स्केल डोज इन रिपीटेड टाइम, ओके। सो इन इनक्यूरेबल डिसीज 50 मिलीसीमेल पोटेंसी विद रिपीटेड डोसेस। नाउ सी सिट ऑफ डिसीज, सो ऑन द बेसिस ऑफ सिट ऑफ डिसीज अगर देखो विसरल डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, तो ऑलवेज वी हैव टू यूज लो पोटेंसी एंड वी हैव टू यूज सी जास्त दो mother tinctures are very much used in this condition when there is visceral damage, okay. On the basis of previous treatment we have to use high potency। ये मैंने बोला था कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है मेडिसिनल एग्रीवेशन लेके, तो आपको वही रेमेडी का हायर पोटेंसी में एक डोज देना है, दैट इज प्रीवियस ट्रीटमेंट होगी तो हमें हाई पोटेंसी सिलेक्ट करनी है। नाउ स्टेट ऑफ डिसीज, सी डिसीज के दो स्टेट होते हैं, आपको पता होगा, डायनामिक और ऑर्गेनिक स्टेट।
डायनामिक पैथोलॉजी एंड ऑर्गेनिक पैथोलॉजी. डायनामिक मतलब डायनामिक फोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो डायनामिक, एंड ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो इट इज ऑर्गेनिक. सो डायनामिक अल्टीमेटली लीड्स इनटू ऑर्गेनिक इफ इट इज नॉट क्योर्ड. ओके, so dynamic pathology it is nothing but beginning, organic is later stage. In dynamic we have to use high potency, in organic low potency. So if we use repeated dose in dynamic disease it lead to organic pathology. अगर कोई डिसीज नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है पेशेंट को, फिर भी हमने क्या किया, यूज किया, ठीक है, रिपीटेड डोज दिया उसको इन डायनामिक डिसीज, दैट इज बिगिनिंग ऑफ डिसीज में हमने रिपीटेड डोज दिया कोई ड्रग का, तो व्हाट हैपन, इट अल्टीमेटली लीड्स टू ऑर्गेनिक पैथोलॉजी. So this is our posology. It is very important in like dispensing, we'll say in on the view of like theory exam, the question comes only. So the note I have done provided in comment section, you can download from that, and please subscribe to my channel. Thank you.